आसनसोल के कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप में स्थित श्रमिक भवन में आज स्टेट लेबर इंस्टीट्यूट के आसनसोल शाखा का उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के श्रम अधिकारी संदीप नंदी ने इसका उद्घाटन किया। इस संस्थान में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड लेबर वेलफेयर के विषय पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई करवाई जाएगी। ये 1 साल का एक कोर्स है। आज इस संस्थान के उद्घाटन के मौके पर श्रम विभाग के तमाम आला अधिकारी उपस्थित थे। অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি অর্গানাইজ করার জন্য। স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মলয় ঘটক স্যার, উনি তখন আমাদের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এর আগের টেনিউরে। ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট আসানসোল ব্রাঞ্চের পদে শুরু হয়। গতবার কোভিড পরিস্থিতির কারণে একটি ব্যাচ অলরেডি আমাদের পাস করে গেছে 19-20 সেশন, আর একটি ব্যাচ যেটি এখন প্রেজেন্টলি যে ব্যাচটি রয়েছে 20-21 সেটা চলছে। আমাদের কত স্টুডেন্ট আর কি বিষয়ে এখানে মানে পড়াশোনাটা করানো? আমাদের এখানে 25টা সিট আছে। 20টা হচ্ছে রেগুলার মানে ওপেন, তারা ফ্রেশ ফ্রম কলেজ বা আছে তারা আসতে পারে। আর 5 জন আছে যারা নমিনেটেড মানে স্পন্সর ক্যান্ডিডেট, কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করছে, অলরেডি চাকরি করছে, তাদের হয়তো কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে পড়া দেবে। এরকম সিট 5টা। মিনিমাম কি কোয়ালিফিকেশনে? গ্র্যাজুয়েশন, মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশন। ঠিক কোথা কোথা থেকে স্টুডেন্টরা এসছে এখানে? আজকে তো যা দেখলাম এখানে শুনলাম, একজন তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টও পেলাম, মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট। কেউ দেখলাম BCA রয়েছে, আর এমনি জেনারেল গ্র্যাজুয়েট যেটা হিস্ট্রি অনার্স, বেঙ্গলি অনার্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স, এরকম তো সব স্টুডেন্ট, BCom অনার্স এরকমও সব রয়েছে। তো বেসিক ক্রাইটেরিয়া যেহেতু আমাদের গ্র্যাজুয়েশন, তো বিভিন্ন স্ট্রিমের গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টই এখানে আসে। এখানে কোর্স করে কোথায় চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা? মূলত এটা ইন্ডাস্ট্রি চাকরি, 1 বছরের কোর্স, এবং পাস আউট হওয়ার পর বা পরীক্ষা দেওয়ার পর ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ হবে। সেখানে যে ইন্ডাস্ট্রিরা এখান থেকে ছেলে মেয়ে নিতে চায়, তারা তাদের প্রয়োজন এবং এদের স্টুডেন্টের প্রোফাইল লিখে তাদের ডেকে ইন্টারভিউ করে পরীক্ষার তাদের সিলেকশন করা। তো কীরকম ফিস নেওয়া হচ্ছে এখানে? কোর্স ফিস হচ্ছে 8,000 and 12,000। 8,000 ফর রেগুলার ক্যান্ডিডেট, আর যারা কোম্পানি থেকে নমিনেটেড হয়ে আসছে তাদের জন্য 12,000 ওয়ান টাইম কোর্স। আপনার নামটা স্যার? আমার নাম সন্দীপ নন্দী, আমি ডাयरेक्टर स्टेट लेबर इंस्टीट्यूट। राजनीति विज्ञान के ऑनर्स द्वितीय वर्ष की एक छात्रा रानीगंज के बल्लभपुर के साहेबगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। घायल छात्रा के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रैक्टर को रोककर विरोध करना शुरू कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा को रानीगंज के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। शुक्रवार के सुबह हुए हादसे के बाद से बल्लभपुर साहेबगंज इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल और पंचायत सदस्य पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ट्रैक्टर के लापरवाही से चलाने के कारण हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ঢুকাই দিয়েছিল আর ওই গাড়িটা ট্রাক্টরটা নিয়ে চলে এসেছিল আর মাঝে একদম পায়ে চেপে গেছিল পুরো কোমর থেকে। আচ্ছা, কোনখানে হয়েছিল ঘটনাটা? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটা আছে, এই আপনার খ্রিস্টান স্কুলটা আছে না ওইখানে। ও খ্রিস্টান পাড়ার কাছে নাকি? বোন কি নাম? পারমিতা বাবুনি। কোথায় থাকো তোমরা? বল্লভপুর পালপাড়ে। ইয়ের নাম কি বল? তোমার নাম? আমার নাম জয়শ্রী, সেকেন্ড ইয়ার। আর दोनों सेकंड ईयर ही पढ़े। मेयर और चेयरमैन बनने के बाद विधान उपाध्याय और
अमरनाथ चटर्जी को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मेयर विधान उपाध्यक्ष चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक तथा वसीमुल हक को सम्मानित किया गया। इन सभी ने आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद दिया। विधान उपाध्याय ने कहा कि समाज के विकास में चेंबर से जुड़े लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। उन्होंने चेंबर के पदाधिकारियों को आगे बढ़ने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि निगम हमेशा उनके साथ है। রয়েছেন এবং সর্বোপরি আপনারা সকলে আছেন, প্রায় সকলে মানে আমার সাথে চেনা জানা। অনেকে যেহেতু আমার বাবা বহু বছর থেকে মানে রাজনীতির সাথে জড়িত, এই সমাজসেবার সাথে জড়িত ছিল, যারা সিনিয়র আছেন প্রায় সকলকে চেনা দেখেছি। তো সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। খুব ভালো করে কাজ করুন, যে কাজ করছেন, ব্যবসা করছেন, যে যেখানে যেটা করছেন খুব ভালো করে করুন। আর আমি অমরদার কোথা থেকে শুরু করব, যেটা সবচেয়ে মানে দামি কথা, যে শুধুমাত্র সরকার বা কোনো চেম্বার অফ কমার্স বা আমরা কোনো ভালো কাজ করলে হবে না, সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষ সচেতন যতক্ষণ না হবে, যেটা বললো যে পুলিশ বা আমরা যদি রাস্তাতে হয়তো মাইকিং করে দিচ্ছি, তাহলে ভাববে যে এরা ভোটের জন্য করছে বা এরা আমাদেরকে একটা জাস্ট দায়িত্ব দিয়েছে তারা করা হাঁটার জন্য করছে। কিন্তু আপনাদের মতো মানুষেরা যদি বা বুদ্ধিজীবীরা যদি রাস্তাতে নেমে যদি এগুলো করে, তাহলে মনে হয় সবচেয়ে উপকার, যেটা অমরদা বলেছে, খুব ভালো দামি কথা বলেছে এটা। আর চেম্বার অফ কমার্সের যেটা 3টে প্রস্তাব, মানে খুব সুন্দর লেগেছে প্রস্তাবগুলো। সবচেয়ে যেটা আমরা অলরেডি আমরা মিটিং করেছি, আমরা পার্কগুলো নিয়ে আমরা মিটিং করেছি। আমরা বলেওছি যে পার্কগুলোকে সাজানো গোছানোর জন্য। তো যা হোক, খুশির খবর এখানে আজকে পেলাম, কর্পোরেশনের কিছুটা পয়সা বাঁচবে। যে আমাদের আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স বলেছে আমরা পার্কগুলোকে পুরোটাই রক্ষণাবেক্ষণ সাজিয়ে দিতে পারবো। তো তার জন্য ধন্যবাদ। আর যেটা বলেছেন যে ডেভেলপমেন্ট কমিটি, নিশ্চিতভাবে এটাও আমরা আলোচনা করেছি, কারণ আপনার সবার দরকার আছে। একটা সংস্থাকে চালানোর জন্য, একটা কর্পোরেশনকে চালানোর জন্য সব শ্রেণীর মানুষকে দরকার আছে, এবং তাদের যে কোনো মূল্যবান কথা হয়তো আমাদের যেগুলো দরকার পড়ে সেগুলো জেনে নেওয়া আমাদের উচিত বলে মনে করছি। খুব ভালো প্রস্তাব। এবং যেটা আরেকটা বললো যে আপনার প্রস্তাব রেখেছেন যে ওই যে ট্রেড লাইসেন্সের যেটা রিনিউয়াল, ওটা আমি অমরদার কথা বলছিলাম, আমি অভিজিতের সাথে কথা বলে নেবো, অসীমদার সাথে কথা বলে নেবো। কথা বলে নিশ্চিতভাবে চাইবো যাতে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে, যেটা মানে আমি নরেশদার সাথে কথা বলছিলাম যে হয়তো 2 দিন টাইম দিয়ে দেওয়া হলো, 2 দিনের মধ্যে সব গোটাটা হয়তো হয়ে গেল। তো আমরা নিশ্চিতভাবে এগুলো আমরা করবো। চলো, তো এগুলো लेके आने नहीं सकता है, तो ये किसी ना किसी दुकान का है, चाहे फूड का दबा दुकान हो, चाहे कोई चेंबर कमार्स का कोई सदस्यों का दुकान टीना निकाल दिया गया हो, ये सब सबको सोचने होगा। देखिए, हम लोग का भी गलती है, हम लोग लोग नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज करते आज इस जगह में आसनसोल को खड़ा किया। सब मिलकर आसनसोल को सुधारना है। चेंबर को भी सुधारना है, पॉलिटिकल आदमी को लेकर सुधारना है, चेंबर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर सुधारना है, पुलिस को भी जरूरत है सुधारने का। पुलिस को भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। पुलिस को सुधारना होगा, बोलने होगा कि भाई खाली मोटरसाइकिल लगाने से नहीं होगा, आपको देखने होगा कि गाड़ी ठीक ढंग से वो चलाता है कि नहीं। गाड़ी रुक के वो चल जाता है, वो उसको देखने होगा आपको। ये सब मिलकर इसको काम करना होगा। हम लोग को ऊपर प्रेशर करने से हम लोग जो काम करता है पानी दे देगा, हम लोग पीछे हो जाएगा। हम लोग ड्रेन सफाई का जो काम करता है, हम लोग को पीछे हो जाएगा। हम लोग को जो रास्ता मेरामत करने का काम है, हम लोग उसमें अगर समय नहीं देने से तो रास्ता खराब हो जाएगा, वो बिजनेस का लिए खराब होगा। आसनसोल से बाहर से आदमी नहीं आता है। पहले हम लोग जब बचपन था, दुकान में खरीदने के लिए कुछ जाता था, पिताजी लोग पूछता है भाई कहाँ से आ रहा है, कोई बोलता है हम सिवनी से आ रहे हैं, कोई बोलता है हम धनबाद से आता है, कोई बोलता है हम बांकुड़ा से आता है। अभी जैसे आदमी नहीं मिलता है, सब बोलते हैं दुर्गापुर जाता है, कोई बोलता है धनबाद का भी, धनबाद में बाजार कर लेता है, धनबाद और बड़ा बाजार हो गया है। देखिए, हमारा आसनसोल, आपका आसनसोल, सब एक का आसनसोल, एक आसनसोल को सुधारने के लिए हर आदमी को जरूरत पड़ता है। हर आदमी को हाथ एकदम मजबूत करने पड़ेगा। हम लोग हैं आप लोगों के साथ, आप लोग खाली आगे बढ़िए। अगर हम लोगों को कहीं पर भूल है, ये भी हम आप लोगों को हक दे के जाता हूँ, मेरा हक। ये कहीं अगर मैं भूल करूँ
तो हमारा हाथ पकड़ना, जहाँ हमसे ज्यादा भूल ना हो जाए। आप सब अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए, सुंदर रहिए। कॉर्पोरेशन आप लोगों के साथ पहले भी था, आज भी है, आने वाला दिन भी रहेगा। हमारा कामयाब मेहर साहब है, कलकत्ता उनको रिकमेंड करके नाम भेजा है। कलकत्ता से उनका भी अच्छा रिश्ता है। वासिम उल हक हमारा जो नजदीक में नहीं आया है, अभिजीत घटक, वो भी बढ़िया काम का आदमी है। हमारा जो आप कॉर्पोरेशन का बहुत सा उम्मीदवार जीता है, वो सब भी कोई बहुत काम का आदमी है। हर मोहल्ला में समाज का काम करता है। आने वाला दिन में और करेगा। आप लोग जैसा बुजुर्ग मिलेगा, आप लोग जैसा एडवाइस, तूफान हो चाहे वो अम्फान हो, कोई भी अगर समस्या आसनसोल में आया है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम लोग देखा है बहुत ही आगे बढ़ के आसनसोल के लोगों का साथ दिए है और आसनसोल के लोगों को उस मुसीबत से, उस समस्या से निकालने का कोशिश किया है। बहुत जगह में हम लोग देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेंबर्स है वो पैंडेमिक का समय खाने का सामान बांटा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोई एम्बुलेंस सर्विस दिया है। बहुत सारा काम इंडिविजुअली भी किया है और चैम्बर्स का थ्रू से भी किया है। नरेश यहाँ पर चैम्बर का प्रेसिडेंट है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिन में हम लोग फिर से आप लोगों के साथ बैठेंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे किस तरह से आसनसोल को और भी अच्छा एक शहर, एक डेवलप शहर बनाने का कोशिश हम लोग करेंगे। इसमें आप लोगों का साथ और मदद को तो जरूरत होगा ही, लेकिन ये भी कहेंगे कि आप लोग और ज़्यादा आसनसोल में आप लोग रहते हैं, आसनसोल का आप लोग सिटीजन है, नागरिक है। इस तरह से अगर आसनसोल में आप लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें हम लोग का शहर आगे बढ़ेगा। आसनसोल में नया नया उद्योग आना शुरू किया है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आसनसोल का जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट आसनसोल में करे, क्योंकि ऐसा बहुत आसनसोल में हम लोग का यहाँ से है जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा जगह में कहीं इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई दुर्गापुर में लगा रहा है, कोई पानागढ़ में लगा रहा है, कोई दूसरा जगह में लगा रहा है, बांकुड़ा में लगा रहा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सही बात है वहाँ भी कीजिए, लेकिन साथ में आसनसोल में भी कुछ आप लोग अगर इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो इसमें आसनसोल में भी जो हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोग को भी नौकरी का मौका मिलेगा, काम का मौका मिलेगा और आसनसोल शहर में रह के ही वो काम कर सकेंगे। तो ये आने वाले दिन में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से आसनसोल में ध्यान दीजिएगा, आसनसोल का शहर में ध्यान दीजिएगा और आसनसोल को आगे ले जाने में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ में रहेगा। और फिर से मैं बात समाप्त करने का पहले सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को काबिल समझा है आज यहाँ पर बुला के फेलिसिटेट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिन में जिस तरह से हमारा जो सरकार है बंगाल में, जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर है, जिस तरह से वो आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं, इसी तरह से हम लोग भी आप लोगों पर भरोसा और उम्मीद रखते हुए आने वाले दिन में आप लोगों का साथ और सहायता ये दोनों लेकर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हुगली जिले के चनमपदानी इलाके के रहने वाले जयदीप रावत हुगली से माता वैष्णो देवी तक 22 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर करने के लिए निकल पड़े हैं। इस क्रम में जब रानीगंज पहुंचे तो हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। उनका कहना है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि पिछले नगर निगम चुनाव के दौरान अगर उनके 5 नंबर वार्ड से प्रत्याशी विक्रम साहू बबुआ चुनाव जीतते हैं तो वे हुगली से मां वैष्णो देवी तक साइकिल से 2200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और वहां जाकर नारियल चढ़ाएंगे। अब जबकि उनके मनपसंद प्रत्याशी को नगर निगम चुनाव में जीत मिली है तो वे 8 मार्च से यात्रा पर निकले हैं और माता वैष्णो देवी के चरण में नारियल चढ़ाने जा रहे हैं। कई लोगों ने उनको ट्रेन से जाने की सलाह दी, लेकिन उनकी मन्नत थी कि वे साइकिल से जाएंगे। यही वजह है कि वे साइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और
निर्मल बंगाल अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरे भारत की साइकिल से यात्रा की थी। उनका ये सफर 22 राज्यों से होते हुए तकरीबन 20,000 किलोमीटर का था। 2020 में भी उन्होंने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से कोलकाता तक का सफर साइकिल पर तय किया था। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 8ই মার্চ পশ্চিমবাংলার জেলা হুগলি চাঁদনি পৌরসভা থেকে আমি বেরিয়েছি। এই সাইকেল যাত্রা আরম্ভ করে আমি বৈষ্ণোদেবী পর্যন্ত যাব। আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে পৌরসভা ভোটে আমার যে পার্ষদ যে আমি যাকে সমর্থন করেছিলাম বিক্রম সাহ বউয়া, যদি মায়ের কাছে আমি মানুষ পেয়েছিলাম, হে মা যদি জিতে যাই আমি তাহলে আমি তোমার কাছে সাইকেল নিয়ে নারকোল দিতে আসবো। তো তিনি বলেছিলেন যে ট্রেনে করে যাও। আমি বললাম ট্রেনে করে যাব না, আমি মায়ের কাছে মানসিক নিয়েছি, সাইকেলে করে যাব। উনি আমাকে নারকোল একটা পুজো করে দিয়েছেন, আমি সেই নারকোলটা নিয়ে যাচ্ছি। এবং রাস্তার মধ্যে রাত্রে যেখানে হচ্ছে আমার যে সমাজসেবী সংস্থা যেগুলো আছে, যারা ধার্মিক সংস্থা আছে, যারা মারবাড়ি যেরকম নারায়ণী সেবা ট্রাস্ট আছে, ভারত সেবা আশ্রম আছে, রামকৃষ্ণ মিশন আছে এবং যেখানে মন্দির আছে সেখানে আমি রাত্রি বিশ্রাম করব। এইভাবে করতে করতে আমি বৈষ্ণোদেবী যে 2200 কিলোমিটার কলকাতা থেকে এবং বৈষ্ণোদেবী জম্মু কাটরা অবধি আমি যাব এবং ওখানে পুজো দিয়ে তারপরে আমি ট্রেনে করে বাড়ি ফিরব। এই প্রথমে সাইকেলে পাড়ি দিচ্ছেন না এর আগে? আগে আমি 2018-19-এ অল ইন্ডিয়া সাইকেল করেছিলাম 22টা রাজ্য। সেই উদ্দেশ্যটা ছিল আমার স্বচ্ছ ভারত এবং নির্মল বাংলা নিয়ে, যেটা 20,000 কিলোমিটার ছিল। তারপরে আমি আবার রক্তদান, জীবনদান নিয়ে করেছিলাম কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে বম্বে, বম্বে থেকে কলকাতা। এটা হচ্ছে 2019 এবং 20। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে জয়দেব রাউ, পশ্চিমবাংলা জেলা হুগলি, চাঁদনি মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নাম্বার 5।